Very good morning, students. So, in class 9th, your chapter first second part is matter around us pure. Students, हमारे चारों तरफ जितने भी मैटर है, जितने भी मैटर हम देखते हैं, क्या सब प्योर फॉर्म में है, क्या सब एलिमेंटल फॉर्म में है, क्या सब कंपाउंड फॉर्म में है, क्या उनमें से कुछ मिक्सचर फॉर्म में भी है क्या? तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द मैटर. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स मैटर से. स्टूडेंट्स, मैटर इज क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स. वन इज द प्योर सब्सटेंस एंड अदर इज द impure substance. So here I have written matter, and in matter I am dividing in two category. So this category number 1, here I am writing pure substance. Pure substance. And students, here it is impure substance. जो प्योर होते हैं, जो प्योर होते हैं और कुछ इम्प्योर होते हैं. तो स्टूडेंट्स, द मैटर इज क्लासिफाइड in two type of substances. One is your pure substance, other is your impure substance. Pure and impure. Now students, this your pure substance, it has got further divided in two part. The first part is elemental form, and second one is compound. These pure substances, they may be in the elemental form or they may be in the compound form. Your impure substances, it has got also divided in two category. So students, category number 1, it is mixture. Pure substance, here I have written impure substance. In place of impure substance, you can write mixture. So here I am writing mixture, mixture. Students, this mixture may be two types. One is your homogeneous mixture, other is the heterogeneous, homogeneous and heterogeneous. So matter is classified in pure substances in the mixture form. Pure substances, again it is divided in elemental form and compound form. Mixture, there are two types of mixture, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. And now this element, students, this elements, again it is classified. This your element, again we have its part, element, it has again its parts. First is that metals, second one is non-metal, and third is metalloids. So students, metals, non-metals and metalloids.
So element can be classified in three category. Category first metal, category second non-metal, category third non-metalloids. So metals, non-metals and metalloids. And now we start with the very beginning that we have started. So it is pure substances. So we start with the pure substances because matter is divided in two parts, pure substances and mixture. So here question comes, what are pure substances? ये जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं ये स्टूडेंट्स क्या होते हैं? एक्चुअली स्टूडेंट्स प्योर सब्सटेंसेस आर homogeneous mixture which are fully mixed together and they cannot be separated by any physical means. So these are the pure substances. So according to definition of pure substances, the matter or material, the matter which is homogeneous, जो बिल्कुल homogeneous है, and their particles cannot be separated by any physical process. This is the definition of pure substances. Other definition, one more definition is there, students, that the matter, the substance which contain same kind of particle. So the element with the same kind of particles are called pure substance. Pure substance. So it was the definition of pure substance. तो स्टूडेंट्स प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो बिल्कुल होमोजीनियस होते हैं, ट्रूली मिक्स्ड होते हैं, उनके पार्टिकल्स जो है वो किसी फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं किए जा सकते। अदर डेफिनेशन, द पार्टिकल्स विच कंटेन सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स, द एलिमेंट विच कंटेन सेम काइंड ऑफ एटम, लाइक दैट स्टूडेंट्स हियर हाइड्रोजन इज देयर H2। तो स्टूडेंट्स इस हाइड्रोजन में 2 एटम्स है, किसके है? हाइड्रोजन के। तो ये सेम काइंड ऑफ एटम्स हो गया। इस दोनों एटम्स को अपन ब्रेक नहीं कर सकते हैं किसी फिजिकल प्रोसेस से। लाइक दैट स्टूडेंट्स इफ आई टॉक अबाउट द वाटर H2O, ये वाटर क्या है स्टूडेंट्स? ये वाटर कंपाउंड है। क्या है ये? कंपाउंड है। और इसमें जितना भी पानी है, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स है, वो क्या स्टूडेंट्स? ट्रूली मिक्स्ड है। उन वाटर मॉलिक्यूल्स को अपन सेपरेट नहीं कर सकते हैं किसी भी फिजिकल प्रोसेस। तो वाटर है, आप वाटर के अंदर H2 और O2 का रेशो देखोगे, बाई देयर इट इज मीन्स डेफिनेट प्रोपोर्शन बाई इट्स मास। हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का मास आप हर ड्रॉप में सेम पाओगे। इसका जो रेशो होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, इसके एटॉमिक मास का रेशो वो आपको सेम मिलेगा।
Students, if you water, you have got pond. If water, you have got lake. If water, you have got oceans. You will get same structure formula, same structures, same composition, and same ratio of hydrogen and oxygen by its mass. So this is students प्योर सब्सटेंस, इसको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स प्योर सब्सटेंसेस में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ऐसी क्या खास बात होती है प्योर सब्सटेंसेस की, तो अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो स्टूडेंट्स ये जो प्योर सब्सटेंस होते हैं इनकी खास बात क्या होती है। सबसे पहले इसके कुछ खास सम पॉइंट्स आर देयर, दैट पॉइंट वी हैव टू डिस्कस। स्टूडेंट्स ये जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं ये होमोजीनियस होते हैं, दे आर होमोजीनियस इन नेचर। स्टूडेंट्स ये थ्रूली मिक्स होते हैं, आप इनको अलग नहीं कर सकते हैं, तो दे आर होमोजीनियस, they cannot be separated by any physical means. Okay students, so first pure substances are homogeneous in nature, they cannot be broken down into their particles by any physical process. Second students, I told you already, they have got fixed composition. इनका जो कंपोजिशन होता है स्टूडेंट्स वो एक फिक्स होता है, लाइक दैट वाटर का एग्जांपल लूँ स्टूडेंट्स, इसमें स्टूडेंट्स हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 एटम हाइड्रोजन का है, 1 एटम ऑक्सीजन का है। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन मैंने बता दिया आपको 1 होता है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 1, देन रेशो, हियर ऑक्सीजन 1 एटम है स्टूडेंट्स और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो यू विल गेट 2:16। इफ यू विल गेट सिंप्लीफाई you will get 1:8. It means in water students, in the composition of water, the ratio of hydrogen and oxygen is fixed, that is 1:8. This ratio you will get in India, you will get in America, you will get in any country of the world. If you go there, you will find in the water hydrogen and oxygen, they are mixed in the definite proportion, that is 1:8. So it is the fixed composition. Second students, here a very important thing, they have what students, they have fixed melting point and बॉइलिंग पॉइंट। उनका जो MP है और उनका जो BP है स्टूडेंट्स वो फिक्स है, तो दे हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, लाइक दैट वाटर। तो स्टूडेंट्स वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का देखिए, तो आइस का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ice water is, you know, it is 100 डिग्री सेल्सियस। फिक्स है स्टूडेंट्स, ये नहीं है कि ये 90 पे बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। इफ़ योर वाटर इज देयर, वाटर इज कंपाउंड, इट इज प्योर सब्सटेंस, इट हैज गॉट 100 डिग्री सेल्सियस है इट्स बॉइलिंग पॉइंट। एंड इफ यू सी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, स्टूडेंट्स आइस किसकी बनती है, आइस इज द फॉर्म ऑफ वाटर ओनली ना, आइस किसका फॉर्म होता है, वाटर का फॉर्म होता है। तो आइस का जो स्टूडेंट्स मेल्टिंग पॉइंट आएगा वो हमेशा फिक्स है, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स हियर 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो यहाँ पे हमने बात की प्योर सब्सटेंसेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस
और प्योर सब्सटेंस में जब आते हैं तो पहले नंबर हमारा आता है एलिमेंट्स का एंड देन कंपाउंड का। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक ऑफ एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स अब हमारा मेन टॉपिक आता है एलिमेंट, क्योंकि हमने बात मैटर की थी। मैटर इज डिवाइडेड इन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस की बात कर ली, प्योर सब्सटेंसेज इज फर्दर डिवाइडेड इन एलिमेंटल फॉर्म एंड कंपाउंड फॉर्म, एंड नाउ वी आर इन एलिमेंट। तो नाउ स्टूडेंट्स वी स्टार्ट विद द व्हाट इज एलिमेंट। ये एलिमेंट क्या है? दो आई हैव टोल्ड यू, हालांकि मैंने ये बता दिया कि एलिमेंट्स जो है वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं। तो यू कैन राइट द substance which contain same kind of particles means students here आपका एटम भी हो सकता है, आपका मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं पार्टिकल्स कह दूँ, मैं यहाँ पे एटम भी कह सकता हूँ, मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स भी कह सकता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एलिमेंट की, तो देन आई विल टॉक अबाउट द एटम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अपन बात करेंगे इसकी एटम्स की। वी विल टॉक हियर अबाउट द एटम्स। तो ये तो डेफिनेशन हुई। नाउ सम एग्जांपल ऑफ एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स, इफ आई टॉक अबाउट द नाइट्रोजन गैस N2, तो ये नाइट्रोजन गैस क्या है? ये स्टूडेंट्स एक एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स क्यों है स्टूडेंट्स? क्योंकि इसके अंदर 2 एटम हैं और दोनों ही एटम किसके हैं? नाइट्रोजन के। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? 2 एटम्स, 2 सेम एटम्स, 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। एटम कितने ही हो सकते हैं स्टूडेंट्स, बट दे शुड बी सेम। लाइक दैट स्टूडेंट्स, इफ आई टॉक अबाउट द गोल्ड, गोल्ड क्या है? गोल्ड एक एलिमेंट है। सिल्वर क्या है? दिस इज ऑल्सो एलिमेंट। इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ आयरन, दिस इज ऑल्सो what elements? If you take any guess, that also element. So if you see the example of gold students, तो गोल्ड के अंदर जितने भी एटम्स हैं, क्योंकि एटम से तो बना होगा पक्का, तो एटम्स हियर, एटम्स ऑफ गोल्ड आर सेम। एटम्स ऑफ गोल्ड आर सेम ओनली। हियर एटम्स ऑफ सिल्वर are also same. Atoms of iron are also same. So yes students, it is about the element. And now students, further classification of elements. और स्टूडेंट्स आगे हम एलिमेंट में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हम स्टडी करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में ये 3 टाइप्स में होंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट जो होगा आपका दैट इज मेटल होगा, दिस इज द मेटल्स। एंड सेकंड होगा आपका, सेकंड वन इज नॉन मेटल। एंड स्टूडेंट थर्ड वन इज द मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स। तो स्टूडेंट्स मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। So today little bit we will see about the metals. So today we start with the metals. Students, if I talk about the elements, till now approximate 118 elements are known.
हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नोन? 118 एलिमेंट्स आर नोन। हम सिर्फ 118 एलिमेंट्स जानते हैं। उनमें से आउट ऑफ 118 92 एलिमेंट स्टूडेंट्स, कितने एलिमेंट स्टूडेंट्स? 92 जो एलिमेंट्स है आर नेचुरली अक्रिंग, जो भगवान ने हमें गिफ्ट में दिए। रिमेनिंग ऑल आर मैन मेड, बाकी सब हमारे डिस्कवर किए हुए हैं, मैन मेड है। आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स ओनली 2 एलिमेंट्स स्टूडेंट्स, कितने एलिमेंट्स? 2 एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। केवल 2 एलिमेंट है वो लिक्विड में है। उनमें से स्टूडेंट्स एक तो मेटल है एंड नेम ऑफ दैट मेटल इज मर्क्यूरी। एक मेटल का नाम मर्क्यूरी है। और सेकंड जो है आपका स्टूडेंट्स नॉन मेटल है, जिसका जो नेम है वो आपका ब्रोमीन है, दैट इज ब्रोमीन। एंड स्टूडेंट्स 11 एलिमेंट्स जो है आर इन गैसियस स्टेट्स। 11 एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स वो गैसियस फॉर्म में है। उनमें से आउट ऑफ देम some are noble gases and some are general gases. So gases name you know. If I talk like that, chlorine gas, bromine I have taken that, N2 nitrogen gas, hydrogen gas, oxygen gas, chlorine gas, and iodine is actually it is gas but it is in solid states. Iodine, after that helium, neon, argon, xenon, krypton and radon. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. This actually it is in solid state iodine. So 11 are in gaseous. Iodine is also in gas. And students, it is found in metal, non-metal and metalloids. All 3 types of elements are there. So here we are, students, 2 metals are there, like that cesium, Cs, and gallium. Cesium and gallium, cesium and gallium, these 2 metals, their melting point is so less. If you keep on the palm, immediately after getting the heat from your palm, they will melt. So students, this cesium and gallium, though they exist in solid form, but after putting on the palm, they convert into liquid form. This also you should know.
आपको इनका भी पता होना। अब स्टूडेंट्स अपन बात करते हैं, नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द दिस योर metals. So now students, metals. So tomorrow our topic only metal. The thing will be told about the metals, physical property of the metal especially included in your 9th class level. Thank you students. Have a nice day.